what we were discussing about the question paper of 2018. I think some questions are still left, right? So let's complete those questions, and after that we'll move toward question paper of 2017. Okay, before starting these questions, I just want to know कि जितने भी questions हम लोगों ने class में किया, सबको clear है? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay, so in the last class, what we were discussing about the political environment and what are its types, right? We were discussing about it, and Yes, basically you all wrote the name types. I think we already discussed name, हम नाम लिखवाया था बस मैंने, है ना? But the वो आपका जो description और जो elaboration था वो I think पूरा नहीं हुआ था, है ना? So in today's class we are going to complete those things, as well as we are going to complete the question, this one. What is business ethics? I guess corporate governance we already completed, right? So corporate governance is a one part of the business ethics, but what is business ethics and how it is working, we are going to discuss about it, right? So let's start with the class. Okay, so we were discussing about the political environment. Okay, so political environment क्या होता है? So political environment, एक minute, just wait for a minute. Okay, so what is the meaning of political environment? So political environment is basically based on the political situation of the country. Political parties we have, they are basically work in the time of election. The politicians who are represent the country, who will represent the बोल सकते हैं government. So basically the whole things which is related with the political situation that comes under the political environment. Election, instability of the government policies and intervention, these are the part of the political environment, right? Okay, so political environment क्या है? Everyone is clear with that. Political environment एक तरीके से external environment, it is a part of the macro environment, and it impact positively as well as it impact negatively on the businesses and companies. जो political factors हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि भाई अगर पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी वर्ड्स हुआ, फेवर में हुआ, तो हाउ वी कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज वेल एज हाउ वी कैन मिनिमाइज द थ्रेट. ठीक है, सो हमने बाकी फैक्टर्स तो सुना ही है. बाकी कितने फैक्टर्स है मैक्रो एनवायरनमेंट में? बाकी फैक्टर्स क्या क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स? बिजनेस एनवायरनमेंट. वेरी गुड. क्या है पेस्टल? मैम, P means political and legal environment. A ecology से related. S मैम socio-culture से related. Very good. T technology से related. L से legal and legal इससे related हो गया. और E तो ecological से related. इकोनॉमिक, इकोलॉजी बोल दिया था. Yes, economic and physical forces. Okay. So पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है इसमें आपके जो बाकी पेस्टल जो है पी से यहाँ पॉलिटिकल है. सो जो पॉलिटिकल फैक्टर्स कोई भी कंट्री का इम्पैक्ट करता है बिजनेस में, ये रिस्क फैक्टर है इंडस्ट्री के लिए. कई बार इंडस्ट्री को इससे हेवी लॉसेस भी बेसिकली होता है और कई बार बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो सबसे पहला टाइप हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किया था, दैट इज डेमोक्रेसी. ओके, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? कोई भी मुझे बता सकता है डेमोक्रेसी क्या है? यस अनीशा. Yes, ma'am, where people have right to elect the leader across the country. Okay. Yes, Anku. Yes, ma'am. People will have right to elect to the government to run the country. Very good. So basically, if we'll talk about the political environment, basically if we'll talk about the democracy में क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो भी हम पब्लिक के पास राइट होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का. The people have right to choose their government by giving vote. ठीक है, voting system is there, and there is a system in democracy. The person who is above the age of 18,
that person can give the vote and they can help to choose the government, right? So democracy में यहाँ full participation किसका होता है? आपके citizen का होता है, और वो एक तरीके से government जो है, आपके ऑटोक्रेसी वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर आपका मोनार्की सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आ रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, राइट? Next one is that the voting right is provided. There is a right for selection of the representative, as well as in the democracy, the political parties have right to participate. They have some logo and बोलते हैं जिसको चिन्ह कहते हैं, उनके साथ they are basically participating in election. एंड आपको जिसको वोट करना है, आप अपने वोटिंग का डेट और इलेक्शन होता है, वहां पर हम जाके वोट देते हैं, एंड आफ्टर द काउंटिंग ऑफ द वोट्स, द पर्सन हुज वोट इज मैक्सिमम, दैट पर्सन इज दैट पार्टी इज द विनर, राइट? सो यहाँ पर जो आपका डेमोक्रेसी है, दैट इज वर्किंग इन द 3 tier. What is those 3 tier? First one is judiciary, legislature and executive. So we already discussed about these 3 things. Judiciary के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, executives पढ़ चुके हैं, और हम लोग legislature के बारे में पढ़ चुके हैं. Legislature में there are 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, which we already discussed. जुडिशियरी में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट्स की बात हो रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. एंड एग्जीक्यूटिव में वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, बेसिकली IAS, IFS ऑफिसर्स हु आर बेसिकली रिलेटेड विद द पॉलिसी मेकिंग. एंड दीज ऑल टियर, ये जितने भी आपके जो 3 लेवल्स हैं यहाँ पर, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ऐसे तो ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दे आर ऑल्सो डिपेंड, मतलब इंटरडिपेंडेंट कर लो, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, सॉरी. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फंक्शंस एंड दे आर लाइबल एंड अकाउंटेबल फॉर ईच अदर, ठीक है. सो जो आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है वो आपको राइट देता है, पब्लिक के पास जितना पावर है उतना पावर यहाँ पर किसी के पास नहीं है डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी सिस्टम में, ठीक है. लेकिन अगर बात की जाए प्योरेस्ट डेमोक्रेसी की, तो प्योरेस्ट डेमोक्रेसी जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट करता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो दे हैव पावर, गवर्नमेंट जब एक बार पावर में आ जाती है, जब वो इलेक्ट हो जाती है, तो दे हैव पावर टू टेक वेरियस डिसीजन रिलेटेड विद द सोशल वेलफेयर, एंड दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर द पब्लिक, लाइक फॉर policies related with the road construction, related with the infrastructure, related with the law and constitution. These powers are given to the government once they are elected. The party who is elected, they can make the government. याद रखिएगा, the party which is elected, they will make the government, right? They will make the government. Political party जब तक power में नहीं है, वो सिर्फ political party है. Once they will come into the power, then it will be converted into the government. Clear? समझ में आया? चलिए. Yes, ma'am. यहाँ पर इलेक्शन, यहाँ पर डेमोक्रेसी में एक चीज ये देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट के जो राइट्स, प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होते हैं, दैट इज वेरी लेस एज कंपैरिजन टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड द सेम सिचुएशन इज हियर इन इंडिया, ठीक है. पार्लियामेंट्री इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आपके लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आपका गवर्नमेंट बनता है. जो भी गवर्नमेंट लीडर बन जाएगा, जो भी लीडर गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने पार्टीज में जितने भी मिनिस्ट्री हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, डिफेंस मिनिस्टर, दैट इज सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इन लोकसभा. So this is a situation of democracy. I guess this point is clear to all of you. Democracy. Yes, Next one is that is टोटलिटेरियनिज्म. मतलब इट्स इतना बहुत बड़ा वर्ड है, इसको टोटलिज्म मान लीजिए, ठीक है. टोटल से बना है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म. सो इट्स अ लॉन्ग वर्ड, बट व्हाट डज इट मीन? It is basically this is a kind of democracy. ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये थोड़ा अलग है. लाइक यहाँ अगर इंडिया में हम देखें, तो हमारे इंडिया में कितने सारे पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर एबल टू सी दैट देयर आर बीजेपी, देयर आर कांग्रेस, देयर आर तृणमूल कांग्रेस, देयर आर सम स्टेट लेवल पार्टीज एज वेल. जैसे बिहार में हमारा जनता दल यूनाइटेड, JDU है, RJD है, राष्ट्रीय जनता दल. सो दीज आर द बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पर अगर कभी भी कंपटीशन, कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज जब खड़े होते हैं इलेक्शन में, सो दे हैव फुल प्रोबेबिलिटी टू विन,
वो जीतने के चांसेस सबके होते हैं ना, यानी बीजेपी जीत सकता है, कांग्रेस जीत सकता है, लेकिन ये जो टोटल टेररिज्म वाला सिचुएशन है, यहाँ पर ऑपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं होता है, मतलब देयर इज ओनली वन पार्टी एंड दैट इज इन पावर। आ रही है बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा कि what is the situation of the total terrorism, that while democracy exists on one side of spectrum, total terrorism exists in so far of the another side. ठीक है, unlike democracy, in the case of the total terrorism, there is only a single party and only an individual holds the power and monopolize it. So basically they are in the monopoly situation. In the market, if there is only one company which is making one type of product, that is in the monopoly situation. The same situation in the political party ka ye situation hai. In the political, matlab in the market, in the country, there is only one party, and that is they have no opposition who is there, who is going to win in the election, right? So ये जो पार्टी है, इनकी हार्डली कोई ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज होता है एंड सेलेक्ट होता है इंडिविजुअल हैव राइट टू सिग्निफिकेंट डिसीजन ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट मोनोपोलाइज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, और जहां पर टोटलिज्म की सिचुएशन है, वहां पर ज्यादातर सिचुएशन में क्या है कि आपका जो भी रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट मोनोपोलाइज कर लेते हैं सारे रिसोर्सेस को। यहाँ पर थियोक्रेटिक और सेक्युलर दो टाइप के आपके टोटलिज्म में फॉल करते हैं। थियोक्रेटिक में क्या होगा कि इंटायर पॉलिटिकल कंट्रोल इज गिवन टू द रिलीजियस लीडर और फ्रेटर्निटी, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो ऑपोजिशन है वो एक रिलीजन से बिलोंग, मतलब एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, एक जो पार्टी है, अगर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेगा तो वो क्या करता है, थियोक्रेटिक में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो पॉलिटिकल कंट्रोल होगा वो सिर्फ एक रिलीजियस लीडर को दे दिया जाता है। कई बार जैसे कि मैक्सिमम जगह पे, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट कमेंटिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन पर्सनल, बट आई एम नॉर्मली टेलिंग दिस इन एलैबोरेशन वे, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कंट्री में एक रिलीजन का ज्यादा दबदबा होता है या वो मेजॉरिटी में होते हैं, तो कई बार उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं वो उसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो थियोक्रेटिक सिचुएशन में यही होता है कि जहां पर टोटल टेररिज्म वाला सिचुएशन है, जहां पर ऑपोजिशन में कोई पार्टी है ही नहीं, ज्यादातर वो जो लोग होते हैं वो रिलीजियस पोजीशन होल्ड करते हैं, यानी वो एक पर्सन है जिसको लोग बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग बहुत मानते हैं उनको, लोग बहुत पूजा करते हैं उनकी, और उनको ही एज अ रिलीजियस लीडर देखना पसंद करते हैं वो, मतलब एज अ गवर्नमेंट भी उन्हीं का वो चाहते हैं। यस माही, इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। या एग्जैक्टली, नॉर्थ कोरिया इज द एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द एग्जांपल। ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट? सो वेयर देयर इज ओनली क्या सिचुएशन है कि भाई जो भी वहां पर मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो अपने एक लीडर को समझते हैं कि इन्हीं का गवर्नमेंट होना चाहिए और उन्हीं का गवर्नमेंट होता है। टोटलिज्म में कोई भी ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं होता एक तरीके से। थियोक्रेटिक मतलब समझ ही गए होंगे, इंटायर पॉलिटिकल कंट्रोल एक रिलीजियस लीडर और फ्रेटर्निटी को मिल जाता है। सेक्युलरिज्म वाला क्या सिचुएशन है? सेक्युलरिज्म में यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो स्टेट करता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो दैट इज द ह्यूमन लाइफ एंड एथिक्स। तो सेक्युलर आपको तो पता है क्या बोलता है, सेक्युलर, हमारा इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है वेयर वी आर लिविंग विद मल्टीपल रिलीजन। ठीक है, वी हैव फुल राइट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, वी हैव राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। ट्रू, we are living together, there is a no discrimination between the different religion, so that the democracy is always support the secular thing। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है, थियोक्रेटिक तो समझ आ गया कि रिलीजन के हिसाब से एक ही लीडर चूज करेंगे, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अगर वहां माइनॉरिटी के लोग हैं तो वहां से डिस्क्रिमिनेशन होता है थियोक्रेटिक सिचुएशन में। सेक्युलरिज्म क्या सिचुएशन है कि सेक्युलरिज्म में जो प्रिंसिपल कहता है कि वर्ल्ड का कोई भी जो अफेयर है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, एथिक्स और ह्यूमन का लाइफ। ठीक है, इट कंक्लूडेड द सेक्युलर टोटलिज्म वाले सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ रिलीजियस आइडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे पहले वाला थियोक्रेटिक में रिलीजियस आइडिया था ना कि रिलीजन को ही हम फेवर करेंगे, टोटलिज्म जो सेक्युलर होता है उसमें रिलीजियस आइडियाज के साथ ये नहीं चलता है। जो एग्जिस्टेंस है टोटलिज्म का वो मे बी रेंज फ्रॉम फैसिज्म टू कम्युनिज्म, लेकिन यहाँ सेक्युलरिज्म वाला सिचुएशन टोटलिज्म में अगर है तो यहाँ पर द पर्सन
can be of any religion, of any community, that doesn't matter. But in the case of the theocratic, that is also the part of the totalitarianism. मतलब ये दोनों कैटेगरी में, टोटलिटरिज्म में ये दोनों कैटेगरी पॉसिबल है. यहां पर क्या सिचुएशन होगा, जहां पर आपका सेक्युलर की जगह थियोक्रेटिक है, वहां रिलीजन बेसिस पर हम क्या करते हैं, लीडर को चूज करते हैं. आगे बात समझ में, पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम. सेक्युलरिज्म with totalitarianism, theocratic with totalitarianism. I guess this point is clear. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next one is a communism. Communism. अच्छा, this word is derived from the community. ठीक है, communism. So here the political और economic जो system है वो entirely integrated रहेगा, political और economic. सोशल रिवॉल्यूशन जो होगा वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, यहाँ पर बस ये बात मानो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम पूरा इंटीग्रेटेड होगा. यहाँ पर सोशल रिवॉल्यूशन, वर्किंग क्लास का ज्यादातर चीजें चलेंगी. कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दिखता है ना कैसे चलती है. सो यहाँ जो वर्किंग क्लास होंगे यूजुअली गाइड्स द सोशल रिवॉल्यूशन, और इनका मेन रीजन ये होगा कि टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, to transform the society and basically remove the economic differences and inequality. So in the case of the communism के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्किंग क्लास हैं वो यूजुअली वो सोशल रिवॉल्यूशन के हिसाब से चलेंगे. तुम लोगों ने सुना होगा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी. आप लोगों ने सुना होगा मार्क्सिस्ट जो थे वो भी, दैट इज ऑल्सो वर्क फॉर द कम्युनिस्ट. सो यहाँ आपके चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रोल है, पता है ना ये चीज. So it is a part of the communism where the things will done according to the social revolution चलेगा हमेशा. यहाँ पर मोनोपोली राइट्स बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर इलेक्शन के राइट्स नहीं, यहाँ पर जो भी पावर में है, जो भी गवर्नमेंट है वो बेसिकली सोशल वेलफेयर के फैक्ट से चलेगा. वर्किंग क्लास जो है वो सोशल रिवॉल्यूशन को वैल्यू देंगे, साथ साथ में ये एक तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का इनका थीम रहेगा कि हम सोसाइटी को बदले. ठीक है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर फोकस करें, सोशल लाइफ के ऊपर फोकस करें, एंड दे वांट टू रिमूव द इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज. सो कम्युनिज्म में दैट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली टू रिमूव द इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटी. ओके, फेसिज्म. तुम लोग में से बहुत लोगों ने इराक का नाम सुना होगा, सुना क्या? मतलब ऑब्वियसली सब लोगों ने ही सुना होगा. तो यस, so let me tell you, even earlier see, I am just telling it as an example. Earlier even the Pakistan, that was under control of the military. Okay, so what is the situation of the fascism? The military is what control the politics in case of fascism. मतलब fascism के केस में क्या होगा कि आपकी गवर्नमेंट नहीं, मिलिट्री पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगी. कौन कंट्रोल करेगी? मिलिट्री. और इंडिया में डेमोक्रेसी है तो मिलिट्री को कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट. और यहाँ गवर्नमेंट की जगह मिलिट्री पूरा का पूरा कंट्रोल करेगी कंट्री को. जो स्टेट है, मतलब यहाँ पर बेसिकली नेशनलिज्म और कॉर्पोरेट स्टेट वाली सब सिचुएशन गई, और यहाँ पर मिलिट्री जो है दे विल स्टार्ट मेकिंग द पॉलिसीज एंड दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द होल कंट्री. ठीक है, लाइक मिलिट्री इज फॉर व्हाट? बेसिकली दैट इज फॉर protecting the country, but they will start protecting the country in different way. They started governing the country as well. So that is a fascism situation. Clear? Yes. Okay. So what is the effect of the political factors? क्या-क्या हो सकते हैं? Political factors के types clear हो गए ना सबको? Clear हो गया सबको? Political environment और political environment के types? Yes. Let's move toward the business ethics. Business ethics क्या है? अच्छा, see, घर पे कभी भी ऐसा नोटिस किया है जैसे कभी बच्चे से किसी से लड़ाई हो गई, किसी भी बच्चे से आपकी लड़ाई हो गई, मतलब आपस में, तो मम्मी कभी बोलती है बेटा थप्पड़ मार दो उसे? No, ma'am. I am normally asking this question. Did anyone mother saying that अगर तुम्हारी फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो उसको पीट दो, मारो, ऐसा बोलते हैं मम्मी? कभी नहीं बोलते ना? पापा ऐसा बोलते हैं? नहीं, पापा बोलते हैं. Like see,
ethics is something which will tell you that what is right and what is wrong. ठीक है? Never exploit others, never harass others. That is what the ethics says. And ethics is not about that it is required in the business, but ethics is also in our life, है ना? Sometime हम लोग भी ethics को follow करते हैं ना, हमें भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है. जैसे तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीचर से लड़ जाते हैं, टीचर से बहस कर लेते हैं, टीचर पे कमेंट करते हैं, तो एथिकल वे में इट इज राइट और रॉन्ग? Obviously wrong. True. And sometime when we are walking, जब हम वॉक कर रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने कोई पर्सन साइकिल से जा रहा, वो गिर गया, तो आप उसको उठाइएगा कि उसको बोलिएगा गिरे रहो? उठाएंगे मैम, हेल्प करेंगे. Exactly. Why we are doing such kind of thing? Because ethics is somehow it is related with the humanity. ठीक है? It is related with humanity. ठीक है? So I guess this is something which I told you what the ethics means. Ethics is a moral. It is a principle which tell you that what is right, what is wrong, and what is negative in your life, what is positive, how you can run your life in the positive way. ठीक है? So here I am talking about the business ethics. If I am talking about the business ethics, it is related with the organization. True. So ethical guidelines जो होते हैं organization में, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? लेकिन ये भी तो श्योरिटी है ना कि ethics भले हमें पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन everyone is not following it. True. हर एक कोई तो उसको फॉलो नहीं करता है, हर एक कोई का परसेप्शन डिफरेंट है. सो एथिकल गाइडलाइंस कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉ, पब्लिक प्रेशर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है? सो बिजनेस में एथिक्स अगर मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं लॉ इस चीज पे ध्यान देता है कि हर एक जो भी बिजनेस रन हो रहा हो इथिकल वे में रन हो रहा हो. इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज बनाई हैं. ठीक है? So here ethical guidelines किसी भी organization का वो influence होता है आपके किससे? That is influenced by the law and public pressure or combination of both, and this is how the business is executing their operation. ठीक है? Simply अगर हम बात करें तो implementing business ethics का मतलब ये है कि that organization is committing themselves that whatever they are going to do that would be right thing. ठीक है? So in short, implementing business ethics means that organization is committing themselves for doing the right thing. And it's not only about that with the employees, with the every stakeholders who is related with the organization. Clear? समझ में आया यहाँ तक? Yes ma'am. Yes ma'am. अब बिजनेस एथिक्स क्या करता है? बिजनेस एथिक्स आपकी कंपनी की एक वैल्यू की तरह काम करता है, या बिजनेस एथिक्स एक तरीके का एक वैल्यू है जो कंपनी को अपहोल्ड करता है, उसके ऑपरेशन को चलाने में हेल्प करता है. यहाँ पर कॉमन एथिकल कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती है? ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स में आपके कंज्यूमर भी आ जाएंगे, आपके एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे. द एनवायरमेंट यू कैन नॉट रन योर बिजनेस विच इज गोइंग टू disturb the environment or pollute the environment. Anti-corruption and labor rights. So these are the ethical consideration. ठीक है? Within अगर हर एक एरियाज में बात करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एरियाज की अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ एक एरिया में इम्प्लीमेंट करने की चीज नहीं है. इट शुड बी देयर इन ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन इज फॉलोइंग इट. ठीक है? चलिए, अब इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स का? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स? how it will help the business ethics? कोई नहीं बताएगा? Ma'am, business ethics can help the organization to have the competitive advantage. Very good. To make their business organization different from others. Very good. Very nice. See, we can see the example. I can tell you one example. देखो, if you will talk to anyone about TCS, that is a Tata Consultancy Service, right? I'm not promoting here. I'm just giving the example. If you'll ask their employee that what kind of environment you are getting there, everyone will appraise it, right? हर एक कोई इसको appraise करता है. Why? Because no doubt that company is providing better. It's not about that they want कि उनके सिर्फ employees काम करें, बल्कि employees काम करने के लिए motivated भी रहें, इसके लिए they are doing work, right?
तो कहीं ना कहीं देयर एथिक्स आर वेरी मच स्ट्रांग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई द एनवायरनमेंट ऑफ टीसीएस इज बेटर, राइट। तो यहाँ पर पहली चीज जो अनीशा ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि हमें एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड इन 3-4 कंपनीज XYZ एंड इफ दैट person is selected in TCS, so maybe he will prefer that company. Why? Because of the environment and because of the ethics, right? So competitive advantage का दूसरा ब्रांड इक्विटी, यानी आपका एक इमेज बिल्ड होगा, आपके बिजनेस का एक इमेज बिल्ड होगा मार्केट में, गुडविल इंक्रीज होगा, द पीपल विल स्टार्ट अप्रेजिंग, पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन योर बिजनेस, राइट। आपकी एम्प्लॉइज टर्नओवर काफी कम हो जाएगा। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब समझते हो क्या होता है? एम्प्लॉइज टर्नओवर हु इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, इट मीन्स कि द बिजनेस एथिक्स इज वेरी पुअर और लो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? सो इफ देयर इज अ प्रॉपर बिजनेस एथिक्स, द एम्प्लॉइज टर्नओवर विल बी रिड्यूस। आई बात समझ में? कस्टमर, द सेल्स विल इंक्रीज। अगर आप कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, सर्विसेज और गुड्स दे रहे हैं, तो आपका सेल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। बिकॉज इफ यू आर डूइंग वर्क एथिकली, तो आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे होंगे कंज्यूमर को। ऐसा तो नहीं उनको एक्सप्लॉइट कीजिएगा आप। एथिक्स सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। सो डेफिनेटली योर सेल्स विल इंक्रीज, आपका सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा। साथ साथ में एथिक्स की वजह से आपका जो बिजनेस का ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑपरेशन है, वो स्मूथली रन करेगा एंड एवरीथिंग विल बी वर्क अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है प्रोटोकॉल्स, जो पॉलिसीज हमने बिजनेस एथिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, so this is benefits or importance of the business ethics. It is a guiding value which will give the direction that how we can protect, how we can motivate the employees, how we can give means fulfill our responsibility toward the customer, company, organization, stakeholders. ठीक है। एंड देखिए, वाइल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैन नॉट कंट्रोल ईच एम्प्लॉइज एक्शन, लेकिन जो एथिकल इशू अगर कुछ भी आता है बिजनेस में, तो दैट कैन बी लुक अपॉन, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी किसी एम्प्लॉइज को, तो एथिकल वे में हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फॉर इंटरनल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन बेटर रन करने के लिए भी एथिक्स की जरूरत है। साथ साथ में अगर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये ब्रांड इमेज के लिए, बिजनेस की इमेज के लिए, ट्रस्ट के लिए भी आपका बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर? ओके। Yes, ma'am. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? टाइप्स क्या क्या हो सकता है बिजनेस एथिक्स का? ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स। पहला चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज जो है वो लिया गया है आपके बिजनेस एथिक्स में। पहला है ह्यूमन राइट, सेकंड में आपका आएगा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। नेक्स्ट में आएगा आपका एंटी करप्शन इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, एंटी करप्शन इश्यूज, लेबर लॉज। लेबर के बाद क्या था मैम? लॉज, लेबर लॉ, ह्यूमन राइट, environmental and sustainability concern, anti-corruption issues, and next one is labor law. तो इन सब एरियाज में आपका बिजनेस एथिक्स का रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट ऑफ द एम्प्लॉइज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को हम देख सकते हैं। एथिक्स मतलब बिजनेस एथिक्स में हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी ले सकते हैं। एंटी करप्शन इश्यूज, लाइक द पीपल विल नॉट इन्वॉल्व इन द करप्शंस, ठीक है, that can be possible. And you can see that there are so many in so many businesses you are able to see that the alcohol and the tobacco is not allowed, so that is also seen in various office, so that comes under the human rights. Clear hai? Then labor laws, the laws which is related with the workforce, ठीक है। so अगर हम ethical issues को consider करें, तो इसके बहुत सारे पिलर हैं। मतलब ethical issues के, इथिकल जो आपके इश्यूज हैं उसके बहुत सारे पिलर हैं, मोरल पिलर है, मोरल पिलर, ठीक है।
तो मोरल पिलर क्या है कि अगर आपका बिजनेस एथिक्स प्रॉपर है तो क्या होगा, ट्रस्ट जनरेट होगा, ट्रस्ट। सेकंड है रिस्पेक्ट, अगर एथिक्स है तो रिस्पेक्ट रहेगा। कोई भी, अगर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देती हूं कि जस्ट इमेजिन if anyone behave with you in the office in a bad way, do you think that is ethically right? No. No. If Yes. one employee disrespect another employee, that is right? No, ma'am. No. No. So respect is something जो आपके ethics बताते हैं कि like if you are following ethics in the organization, just try to give respect to the customers, employees and the management people, right? ट्रस्ट होना चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल में, कि लोग जो है वो डरे नहीं, हिचके नहीं आपसे बात करने में, दे विल फील सेफ व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, राइट? सो ट्रस्ट कैन बी बिल्ड। रिस्पेक्ट के लिए एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक कस्टमर का और जिनके साथ वो काम करते हैं, यानी अपने कलीग और अब कस्टमर्स का उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। फेयरनेस, सी फेयरनेस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में देयर आर टू स्टूडेंट, अंकु एंड अनीशा, जस्ट टेक इट एज ए एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसको पर्सनल मत ले जाना कोई भी। लाइक देयर आर टू स्टूडेंट्स, लाइक अंकु इज आस्किंग क्वेश्चन कि मैम प्लीज टेल मी द क्वेश्चन ऑफ द आंसर ऑफ दिस, I will explain her in a very better way, I'll give her notes, I will speak, मींस 15 मिनट में उसको समझाई, ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया सब कुछ, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन भी अच्छा होगा तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया। अब अनीशा ने मेरे से क्वेश्चन वही सेम कर लिया नेक्स्ट डे, मैंने कहा हटो, I don't want to give you the answer of this. So do you think this is a fair way to deal with the students if teacher is teaching? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. This is Obviously not, no. Anisha, it's normal way, I am just elaborating, don't take it personal. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, No. so the fairness, it means that when there is no discrimination, if you are working in the organization and the two peoples are in the both position and their performance is better, both performance is better, the organization have no right to discriminate. So ethics is saying that there should be a proper fair judgment and the fair decision making, ठीक है, which is treating people equally. Don't try to discriminate the people or employees or customers, ठीक है, on the basis of anything. Some people are basically discriminating on the basis of the background of the person. So these things are not right and this is not going to work in the organization. So fairness is very much important. Caring. So what is the meaning of caring here? Caring is something which shows that if it encourages the workforce to show empathy toward each other. Yes, Pratyay? ma'am. Recording on नहीं था वही बोल. On है on. On है ma'am. Okay. ठीक है. So what does it mean? कि caring. अब caring क्या है? तो caring it encourage your workforce to show each other empathy and basically यहाँ पर एक दूसरे की बात समझिए, ठीक है, if the two peoples are working in the organization, it's a duty of the organization to provide such kind of environment where the people are friendly. It doesn't mean, I'm not talking about the personal relationship, that is also even not suitable if you are working in the organization. The professional relationship should be harmonious and friendly, that the people will show the concern toward the people, other colleagues, ठीक है. Sometimes some people are struggling a lot. Sometimes people have basically facing so many problems, ठीक है. So being a colleague or being an organization, it is your duty to show the empathy toward those people, ठीक है. Everyone's life is not as such easy, ठीक है. सो यहाँ पर आपको इंकरेज करना है वर्कफोर्स को कि वो एक दूसरे के लिए एम्पैथी रखे, एक दूसरे के लिए दया भाव रखे, कंसर्न रखे, एक दूसरे के इमोशंस को समझे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि लाइफ वही बोला जा रहा है, एम्प्लॉइज सब जो हैं, देयर लाइफ इज, एवरीवन्स लाइफ इज नॉट इक्वली हैप्पी. ट्रू. So these are the 4 pillars of the business ethics. What are those 4 pillars? Trust, रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड केयरिंग. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी? आपका ह्यूमन राइट,
environmental and sustainability concern, anti-corruption issues and labor laws. Labor law. Clear? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. So I guess business ethics is clear to all of you. True? Yes, ma'am. Sometime with the next question, that is roles of manager. Okay, before manager, who is going to tell me what is the meaning of management? Management क्या होता है? Yes, Anisha. Yes, ma'am. Ma'am, management is the art of getting work done by others in an efficient way. Very good. Very good. Yes, Shubhan. Yes, ma'am. Management is the process of achieving organizational goal by the optimum utilization of resource. Very good. Anyone else? Yes, Gaurav. Ma'am, the people who control a business or company. Good. Anyone else? Basically, management एक तरीके से क्या, it is a process, ठीक है, for doing the activities which is helping to optimum utilization of resources, planning and organizing the thing in the proper way, and finally to achieve the certain goal whatever is decided in the organization, right? So management एक क्या है, एक process है किस चीज का, planning का, organizing का, या फिर अपने management की functions जो भी है, planning, organizing, staffing, directing and controlling, और किस चीज के लिए, resources के लिए, and जो business का main aim क्या होता है, in proper management, the main aim of management is to achieve the goal in a better, effective and efficient way, right? Clear हो गया? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा what is management. Okay. Let's start with the manager. अब management से manager, तो manager are basically the leader, एक तरीके से है वो management का. He is responsible for day-to-day operation in the organization. आपकी जो day-to-day operation है, और manager जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक general manager हो. कई बार आपके different department में different manager होते हैं, जैसे finance manager, marketing manager, sales manager, production manager, research manager, right? So यहाँ पर जो manager होता है, they are responsible for integrating the activities in the organization, implementing the policies which is made by the top level. ठीक है, अगर top level आपके management में कौन होता है, CEO, directors जो हैं, अगर वो कोई policy बनाते हैं, तो what is the role of the manager to implement that policies in the whole organization? ठीक है. In the very layman language, I can say that they are coordinating, they are cooperating, and they are making the environment of the environment in which the people can work easily. The operations or activities will work smoothly. ठीक है, and the organization goal can be achieved via that. ठीक है, तो मैनेजर का जॉब जितना सुनने में लग रहा है उतना आसान नहीं है. They are basically in a very responsible position, and it is a complex task whatever they are doing in the organization. So for basically recruiting the people for such responsible designation, we required a skilled people. So आपने कभी भी देखा हो कि जो managers होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, skilled होते हैं, experienced होते हैं और expertise होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें रोल ऑफ मैनेजर की, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में दिस इज डिवाइडेड. लेट मी शेयर द स्क्रीन. सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है आपके मैनेजर के रोल को. ठीक है, सबसे पहला जो है, द फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल. इंटरपर्सनल रोल. ठीक है, तो यहां पर ऐसे बना लो, मैं 1 मिनट में बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा इसको, ऐसा आप लोग भी ड्रॉ कर लेना. ठीक है, यहां लिखो फॉर्मल. देखो मैं ना थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख लेना, दिखेगा नहीं. फॉर्मल ऑथोरिटी एंड स्टेटस. फॉर्मल ऑथोरिटी एंड स्टेटस. ठीक है, प्लस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल. सो एक तरीके से अगर बोला जाए तो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत है अगर हम रोल ऑफ मैनेजर की बात कर रहे हैं. तो
यानी कि एक इंटरपर्सनल मतलब एक फॉर्मल ऑथोरिटी और स्टेटस होना चाहिए, साथ साथ में वो पर्सन जो मैनेजर है उसमें एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो एक पर्सन स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्टीज है, लीडर है, ठीक है, मोटिवेटर है। सो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स स्किल हो गए मैनेजर के। Formal authority and status, because they are doing a job in the organization, they have to hold that status of the authority where he is going to delegate the responsibility to their subordinate. ठीक है, so here we are taking the addition of formal authority and status and personal characteristics and skill. Now this are divided into 3 part. यहाँ पहला लिखिए interpersonal role, interpersonal रोल। नेक्स्ट लिखिए इंफॉर्मेशनल रोल। कौन सा रोल? इंफॉर्मेशनल रोल। नेक्स्ट लिखिए डिसीजनल रोल। डिसीजन से बना है डिसीजनल रोल, डिसीजनल रोल, डिसीजनल रोल। So I guess this point is clear to all of you, right? क्लियर? यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. सो क्या क्या यहाँ पर आपके आएंगे? पहला है आपका फॉर्मल ऑथोरिटी एंड स्टेटस और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए यहाँ पर 3 टाइप के रोल जो है वो मैनेजर के हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल, सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशनल, थर्ड वन इज डिसीजनल। ठीक है, अब इंटरपर्सनल रोल में क्या क्या चीजें होंगी? सो इंटरपर्सनल रोल में लिखिए पहला फिगर हेड। फिगर हेड FIGURE, फिगर हेड HEAD, फिगर हेड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लीडर। नेक्स्ट लिखिए इंटरपर्सनल में लिखिए लीडर LEADER, लीडर। और नेक्स्ट में लिखिए लियाजन LIAISON। रिलेशन भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल रोल। अब इंफॉर्मेशनल रोल में क्या लिखना है? इंफॉर्मेशनल रोल में क्या लिखना है? तो इंफॉर्मेशनल रोल में लिखिए मॉनिटर, मॉनिटर। नेक्स्ट में लिखिए स्पोक्स पर्सन। इंटरपर्सनल में लिख लिया ना, फिगर हेड, लीडर और लियाजन। इंफॉर्मेशनल रोल में लिखिए मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन एंड नेक्स्ट में लिखिए डिसमिनेटर, डिसमिनेटर। नेक्स्ट वन डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में लिखिए एंटरप्रेन्योर। डिसीजनल रोल में राइट एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस। एंटरप्रेन्योर डिसीजनल रोल में है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, एलोकेटर एंड निगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर, निगोशिएटर। अगर मैं शॉर्टकट में तुम लोग को बोलूं तो ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में इलैबोरेट करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और चीज थोड़ा सा लिख लो कि एडिशनल मैनेजर के क्या क्या रोल हैं। इसको टाइम लगेगा थोड़ा इलैबोरेट करने में। एडिशनल अगर हम बात करें मैनेजर के रोल की तो दे आर मैनेजिंग द वर्क्स, मैनेजिंग द वर्कर्स, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, मैनेजिंग द अदर मैनेजर्स, मैनेजिंग द अदर मैनेजर्स, मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, managing innovation, managing pressure groups. Who are pressure groups? The PRs are trade unions and all. Pressure group. Managing public relation, like the publicity, the press conference, these are the part of the public relation. So managing public relations, managing information, managing information,
managing information, managing globalization. So these all are the additional roles of the manager. Okay. Okay, so in the next class, what we are going to understand, that is the interpersonal role, informational roles, decisional roles. Okay. So what are these and how it is going to work? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका सबसे पहला इंटरपर्सनल रोल है, यहाँ पर जो 3 इंटरपर्सनल रोल है जो एक मैनेजर में होना चाहिए, मैनेजर के जॉब में होना चाहिए. सो पहली चीज कि ही इज अ फिगर हेड ऑफ अ यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए एक फिगर हेड है. इन शॉर्ट ही इज इन द इंस्पिरेशन वाले स्टेज पे है वो, मतलब एक लेवल पे है. ठीक है. दे हैव अ लीगल ऑथोरिटी, उनके पास ऑथोरिटी है, उनके पास काम को मैनेज करने की ऑथोरिटी है, उनके पास ड्यूटीज हैं, बहुत सारे साइन कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को. दे हैव ऑथोरिटी फॉर दैट. दे कैन हायर द पीपल्स, दे कैन बेसिकली प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द पीपल. They are interacting with the people who is the outside of the organization, so they are basically doing a multiple work, right? So the interpersonal role में ये सारी चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट में आपका होगा informational role और decisional role, which we are going to do in the next class. Okay, anyone have any question? No, ma'am. No, ma'am. So in the next class we are going to do these questions. Yes, Abhinav. मैम ये एक वर्ड है, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है. Where we are celebrating something that is related with that gathering, ceremonial. Clear हो गई बात, समझ में आया? Gathering. Yes, Alok. मैम इंटरपर्सनल में क्या क्या बोली थी? इंटरपर्सनल में फिगर हेड, लीडर और लियाजन. LIAISON. बहुत लोग लियाजन कहते हैं, लियाजन कहते हैं, तो यू कैन राइट इट. Okay, so in the next class we are going to discuss about the other points. Anyone have any query or any question? No, ma'am. Okay, see you all in the next class. No, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.